السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفلاح اردو اکیڈمی میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، آج کے اس سبق میں سہیل عظیم آبادی کے حالات زندگی کو سمجھیں گے، اور سب سے پہلے جو عبارت ہے اس کو حل کریں گے، اور اس کے بعد سہیل عظیم آبادی کے تعلق سے 14 سوال و جواب کو حل کریں گے۔ یہ وہ سوال ہیں جو عام طور سے امتحان میں آتے رہتے ہیں، جس کا جاننا بہت ضروری ہے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیں، اور شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے شکریہ کا موقع عنایت فرمائے۔ تو آئیے بغیر کسی ٹائم برباد کیے ہوئے شروع کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ سہیل عظیم آبادی۔ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام سید مجیب الرحمن ہے۔ اپنی ابتدائی زندگی میں شاعری بھی کرتے تھے، اسی لیے سہیل تخلص کرتے تھے۔ ناظرین، اصل نام سید مجیب الرحمن ہے اور سہیل تخلص ہے۔ اس سے پہلے آپ جان چکے ہیں کہ شاعر جب اپنی شعر کے آخری مصرع میں جو اپنا نام استعمال کرتا ہے اس کو تخلص کہا جاتا ہے۔ تو اصل نام سید مجیب الرحمن ہے، اور انہوں نے شروع میں شاعری بھی کیا ہے، تو اسی لیے سہیل تخلص کرتے تھے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح ادبی دنیا میں سہیل عظیم آبادی کے نام سے مشہور ہوئے۔ سہیل عظیم آبادی کی پیدائش 1911 عیسوی میں پٹنہ میں ہوئی۔ سہیل صاحب ایک زمیندارانہ خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ 1 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہو گیا اور پرورش نانیہال میں ہوئی۔ ایک معلم کی سرپرستی میں وہیں ابتدائی تعلیم و تربیت حاصل ہوئی۔ ویسے ان کا آبائی وطن شاہ پور بھدول ہے، جو پٹنہ ضلع میں ہی واقع ہے۔ افتادِ طبع کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکے، گرچہ مظفر پور، حیدرآباد اور کلکتہ جیسے علمی مراکز میں قیام پذیر رہے۔ ابتدا شاعری سے کی، لیکن آگے چل کر افسانہ نگاری کی طرف مائل ہوئے، اور پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور بے شمار افسانے لکھے۔ سہیل عظیم آبادی نے آل انڈیا ریڈیو کی ملازمت اختیار کی۔ اس ملازمت کے سلسلے میں دہلی میں رہے، پھر ان کا تبادلہ شری نگر کشمیر ہو گیا۔ پھر وہ واپس پٹنہ چلے آئے اور ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ اس سے پہلے صحافت میں بھی مصروف رہے، رسالے نکالے اور ایک روزنامہ اخبار ساتھی کا اجرا کیا۔ سہیل عظیم آبادی زندگی بھر اردو کی ترویج و اشاعت میں مصروف رہے۔ چنانچہ انہوں نے چھوٹا ناگپور کے علاقے میں 5-7 برسوں تک اردو کی ترویج و اشاعت کا کام کیا۔ دونوں طرف پڑھ سکتے ہیں۔ زمیندارانہ ماحول سے تعلق اور چھوٹا ناگپور کے قیام نے ان کے افسانوں کے موضوعات متعین کر دیے۔ ان کے اکثر و بیشتر افسانے زمینداروں کے استحصال کے خلاف، مزدوروں اور کمزور طبقوں کی حقوق جیسے موضوعات سے متعلق ہیں۔ سہیل عظیم آبادی کی تخلیقات میں ان کے 3 افسانوی مجموعے 4 چہرے، الاؤ اور آدمی کے روپ ہیں، اور ایک
नावल बेजड़ के पौधे हैं। इन मजमूओं के अलावा सुहेल के अफसानों की तादाद 125 तक पहुंचती है। 1980 में सुहेल अजीमाबादी का इंतकाल हो गया। अजीज़ तलबा, आइए अब सवाल व जवाब को हल करते हैं। ये सवाल व जवाब बहुत अहम है। आप हजरात से गुजारिश है कि इसे ध्यान से पढ़ें, समझें और दिमाग में बैठाने की कोशिश करें ताकि आप अच्छे नंबरों से इम्तिहान में कामयाबी हासिल कर सकें। 14 सवाल व जवाब हैं। आइए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 सुहेल अजीमाबादी की पैदाइश कब हुई? जवाब 1911 ईस्वी में हुई। कितने में? 1911 ईस्वी में हुई। सवाल नंबर 2 सुहेल अजीमाबादी के पहले अफसानवी मजमूए का क्या नाम था और वो किस साल शाये हुआ था? जवाब अफसानवी मजमूए का नाम चार चेहरे था जो तकरीबन 1934 ईस्वी में शाये हुआ था। सवाल नंबर 3 सुहेल अजीमाबादी का इंतकाल कब हुआ? सुहेल अजीमाबादी का इंतकाल कब हुआ? 1980 ईस्वी में हुआ। पैदाइश 1911 और इंतकाल 1980। याद रखेंगे, ये खास तौर से इम्तिहान में आता है। सवाल नंबर 4 सुहेल अजीमाबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? जवाब भाभी जान अफसाना निसाब में शामिल है। सवाल नंबर 5 सुहेल अजीमाबादी के बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम क्या था? जवाब सैयद मुजीबुर रहमान था। असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है और सुहेल ये तखल्लुस है और सुहेली से मशहूर हुए। सुहेल अजीमाबादी कितने साल के थे कि उनके वालिदा का इंतकाल हो गया? जवाब 1 साल के थे। 1 साल के थे तो वालिदा का, माँ का इंतकाल हो गया। सवाल नंबर 7 सुहेल अजीमाबादी की पैदाइश कहाँ हुई? जवाब सुहेल अजीमाबादी की पैदाइश पटना में हुई। सुहेल अजीमाबादी के एक नावल का नाम बताइए। उनका एक नावल है बेजड़ के पौधे। सवाल नंबर 9 सुहेल अजीमाबादी ने कौन सा रोज़नामा अखबार निकाला? कौन सा अखबार निकाला था जिसका नाम क्या था उस अखबार का? जवाब साथी। एक अखबार निकाला जिसका नाम क्या था? साथी था। सवाल नंबर 10 सुहेल अजीमाबादी की इब्तिदाई तालीम किस मदरसे में हुई? किस मदरसे से आपने तालीम हासिल की? जवाब भदोली गांव के एक मदरसे में हुई। आपने तालीम कहाँ हासिल की? भदोली गांव के एक मदरसे में तालीम हासिल की। सवाल नंबर 11 सुहेल अजीमाबादी ने किस शोबे में मुलाजमत इख्तियार की? सुहेल अजीमाबादी ने किस शोबे में मुलाजमत इख्तियार की? जवाब ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजमत इख्तियार की। सवाल नंबर 12 सुहेल अजीमाबादी के अक्सर अफसानों के मौज़ूआत किसके मुतालिक हैं? यानी सुहेल अजीमाबादी ने जो अफसाने लिखे हैं वो अफसाने अक्सर व बेशतर किन के बारे में लिखा गया है? सवाल ये है। जवाब है ज़मींदारों के इस्तेहसाल के खिलाफ मज़दूरों और कमज़ोर तबकों के हुकूक़ से मुताल्लिक़ हैं। आपके अफसाने जो लिखे गए हैं वो अक्सर व बेशतर जो है ज़मींदारों के ऊपर जो जुल्म ज़्यादती हो रही थी, इसी तरह मज़दूरों कमज़ोरों के जो हुकूक़ हैं उनके हक़ को अपने अफसानों के अंदर बयान किया है ताकि उनके हुकूक़ मिले और उन पर किसी तरह का जुल्म ज़्यादती न हो। सवाल नंबर 13 सुहेल अजीमाबादी उर्दू के किस अफसाना निगार से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे और क्यों?
जवाब है मुंशी प्रेमचंद के अफसानों से मुतासिर थे। किससे मुतासिर थे? ये नाम याद रखेंगे, आता है इम्तिहान में। मुंशी प्रेमचंद के अफसानों से मुतासिर थे। क्यों मुतासिर थे? अब उसका जवाब आ रहा है। क्योंकि मुंशी प्रेमचंद की खुसूसियात में हकीकत पसंदी, कमज़ोर तबकों की तर्जुमानी, उसलूब में सादा ज़ुबानी के साथ गहराई पाई जाती हैं। ये वो औसाफ हैं जिनसे सुहेल अज़ीमाबादी बहुत मुतासिर थे। क्यों जो है मुतासिर थे मुंशी प्रेमचंद से? उनके अंदर क्या खुसूसियात थी कि उन्होंने अपने अफसाने के अंदर जो हकीकत है उस हकीकत को बयान किया, कमज़ोर तबकों की आवाज़ उठाई, और अफसाना बयान करने में जो उसलूब, जो अंदाज़ और तरीका अपनाया, सादा ज़ुबानी के साथ कि कोई भी आदमी समझ सके, लेकिन उसके अंदर गहराई थी। इस तरह जो है ये खुसूसियात उनके अंदर पाई जाती थी, जिनके वजह से सुहेल अज़ीमाबादी बहुत मुतासिर थे। आइए सवाल नंबर 14 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 14, सुहेल अज़ीमाबादी के बारे में 10 जुमले तहरीर करें और ये भी बताएं कि उनके दूसरे अफसानों के मजमूए का क्या नाम था। नाज़रीन, इसको अच्छी तरह पढ़ करके ध्यान में बैठा लेंगे, रट करके याद करने की ज़रूरत नहीं है। जवाब, सुहेल अज़ीमाबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान था। वो बिहार के मशहूर शहर पटना में 1911 ईस्वी में पैदा हुए। सुहेल अज़ीमाबादी एक संजीदा ज़हन और तख्लीकी सलाहियतों के मालिक अदीब थे। उनकी इब्तदाई तालीम घर पर हुई। मुआशी हालत की वजह से वो आला तालीम मुकम्मल न कर सके। सुहेल अज़ीमाबादी उर्दू अफसाना निगारी में अहम मुकाम रखते हैं। उन्होंने हकीकत पसंदाना अफसाने लिखे जिनमें इंसानों पर जुल्म, गुर्बत और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की गई। उनकी तख्लीक़ात में 3 अफसानवी मजमूए, 4 चेहरे, अलाउ और आदमी के रूप हैं और एक नावल बेजड़ के पौधे है। उनके अफसानवी मजमूओं की तादाद 125 तक पहुँचती है। सुहेल अज़ीमाबादी का इंतकाल 1980 ईस्वी में हुआ। सवाल के अंदर एक और चीज़ था कि दूसरे अफसानवी मजमूए का क्या नाम था। तो सुहेल अज़ीमाबादी के दूसरे अफसानवी मजमूए का नाम अलाउ है, जो मुल्क की आज़ादी के बाद शाये हुआ था। तो नाज़रीन, इसको ध्यान में बैठा लें ताकि और जो सवाल जवाब पढ़े हैं उसी के रोशनी में 10 जुमले तहरीर करना है, उसको अपने तौर पे लिख देंगे। इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। आपसे आखिर में गुजारिश है कि अगर आपको कुछ फ़ायदा पहुंच रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी तरह की कोई बात समझ में नहीं आ रही हो तो कमेंट में उसको बतलाएं, इंशाल्लाह उसका पूरा जवाब दिया जाएगा। और इसे अपने दोस्तों में शेयर भी करें, इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।